بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ کچھ دنوں سے جب بھی ساجدہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتی تو اسے ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ وہ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر بار بار دیکھتی تھی، لیکن دکھائی کچھ بھی نہ دیتا تھا۔ آج بھی وہ ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ گلی میں مکمل طور پہ سناٹا تھا۔ اس کے قریب زور زور سے کسی کے سانس لینے کی گرم ہوا محسوس ہونے پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ کوئی سائے کی طرح جیسے اس کے ساتھ چل رہا تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت گھر سے دوپہر میں کھانا پکانے کا سامان لینے کو نکلی تھی۔ گھر میں وہ جب تنہا ہوتی تو اس کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ کبھی ایسے بھی محسوس ہوتا کہ کوئی اس کو مسلسل گھور رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے ہر وقت بے سکونی سی محسوس ہوتی تھی۔ صرف نماز اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے اسے سکون ملتا تھا۔ لہٰذا جیسے ہی وہ گھر سے کام وغیرہ کر کے فارغ ہوتی تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی۔ قرآن کی تلاوت کرنے پر اسے محسوس ہوتا کہ کوئی چیز جو اس کے پاس موجود تھی وہ اب دور ہوتی جا رہی ہے۔ زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کرنے پر اس کا شوہر جمال بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ویسے بھی جب وہ قرآن نہیں پڑھ رہی ہوتی تو بھی گمسم رہتی تھی۔ ایک دن جب اس کے شوہر سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول ہی پڑا، کیا بات ہے ساجدہ، آج کل تم مجھے لفٹ نہیں کروا رہی؟ لفٹ نہیں کروا رہی؟ وہ حیرت سے جمال کو دیکھنے لگی۔ ان دنوں تمہارا زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے میں گزرنے لگا ہے، ہم سے بات ہی نہیں کرتی۔ کیا کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے اولاد کے لیے؟ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، بھائی لوگوں کے 10 سال تک اولاد نہیں ہوتی ہے، تم اولاد کے لیے اتنا کیوں پریشان ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جمال، مجھے کسی نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا۔ جب کام سے فرصت ملتی ہے تو اس وقت پڑھنے بیٹھتی ہوں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اسی وقت آپ آ جاتے ہیں۔ ساجدہ نے بات بنائی۔ تو میری بات کا تسلی بخش جواب دینے کی بجائے اس طرح کی بات کر رہی ہو، جمال نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ساجدہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور شوہر کو مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا اور اس کے دل میں ساجدہ کے لیے عجیب عجیب وسوسے سر ابار رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے جو ابھی نہیں تو کچھ دن بعد ضرور بات کھل کر سامنے آئے گی۔ لہٰذا اس وقت وہ کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ یہ بات ساجدہ کی خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ ان دنوں اس قدر خوفزدہ کیوں رہنے لگی ہے۔ ساجدہ کو اس طرح سے یاد تھا کہ وہ بچپن میں کسی بھی چیز سے ڈرتی نہیں تھی، خاص کر آصف پر اس کو بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ جو بھی آصف کی موضوع پر بات کرتا یہ اس کا خوب مذاق اڑاتی اور آصف کو دماغ کا حلل قرار دیتی۔ اب وہ خود اس طرح کی کیفیت سے دوچار تھی۔ سوتے سوتے اس کو محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے سینے پر کوئی بہت بھاری بوجھ آ گیا ہے اور وہ چیخنا چاہتی لیکن چیخ اس کے گلے میں پھنس کر رہ جاتی۔ جب وہ اپنے سینے پر 3 بار کل شریف پڑھ کر دم کرتی تب کہیں جا کر اس کی حالت بہتر ہوتی اور بوجھ بھی اتر جاتا۔ کبھی سوتے میں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی خوفناک شکل کا آدمی گھر کی چھت سے دھکا دے رہا ہے۔ کبھی محسوس ہوتا کہ خطرناک قسم کا بچھو یا چھپکلی اس کی قمیص میں گھس کر نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ خواب میں یہ دیکھ کر ڈر جاتی اور خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں کھول دیتی۔ ساجدہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جس طرح چل رہی تھی ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چل نہیں رہی بلکہ بھاگ رہی ہو۔ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر بیگم حمیدہ چونکی۔ وہ اس وقت صحن میں پلنگ پر بیٹھی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ دروازہ زوردار آواز سے کھلنے پر ان کی بے اختیار نظریں ساجدہ پر پڑی تھی۔ بہو بیگم، خیریت تو ہے نا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟
कुछ नहीं अम्मा, जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में तेज तेज कदम उठाती हुई आई हूँ, इसलिए आपको ऐसे महसूस हो रहा है। साजिदा ने बात बनाई। बहू, ऐसी कौन सी जल्दी थी जो इतनी परेशानी में भागती हुई घर आई हो? आइंदा आहिस्ता आहिस्ता कदमों से घर आया करो। तेज चलने में ये नुकसान है कि खुदा ना खास्ता पाँव शलवार के पांचे में फंस जाने से तुम गली में गिर सकती हो, या फिर इसके अलावा और भी कोई हादसा पेश आ सकता है, सास ने समझाया। अच्छा अम्मा, आइंदा कोशिश करूंगी कि ऐसा ना करूं। साजिदा ने अपनी बेतरतीब सांसों को दुरुस्त किया। एक स्याह मोटा ताजा बिल्ला था जो सिंगार मेज पर बैठा साजिदा को गूं रहा था। वो उस वक्त मुसहरी पर लेटी हुई थी। साजिदा जैसे ही उस बिल्ले पर उसकी नजर पड़ी, वो बड़ी तेजी से मुंह के आगे अपने नुकीले दांत निकालता हुआ साजिदा पर झिपट पड़ा, उस पर हमला करने लगा। उसके नुकीले दांत साजिदा के गर्दन में बेबस हो गए थे। सुर्ख सुर्ख खून बड़ी तेजी से गर्दन से बहने लगा था। वो अपने बचाव को चीख रही थी, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आ रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि साजिदा के खून का बिल्ला प्यासा था। साजिदा, साजिदा क्या हुआ है? जमाल ने सोई हुई साजिदा को झंझोरा, क्योंकि साजिदा आंखें बंद किए मुसलसल चीखे जा रही थी। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जमाल के झंझोरने पर साजिदा ने अपनी आंखें खोली। वो खौफजदा होकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। कमरे में वो बिल्ला नजर न आने पर बेख्तियार उसका हाथ अपने गले पर गया। गले पर जख्म का कोई निशान नहीं था। जमाल पर नजर पड़ते ही वो खौफजदा हालत में उसके गले लग गई। क्या हुआ है साजिदा, ख्वाब में डर गई हो? जमाल ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए पूछा। काले रंग का खतरनाक बिल्ला था जो मुझे जान से मार देना चाहता था, और उसने मेरे गले पर अपने नोकीले दांत गाड़ दिए थे, साजिदा ने बताया। तुमने ख्वाब देखा है, यहाँ कोई बिल्ला नहीं है, मैं तुम्हारे बराबर ही सो रहा था, जमाल ने कहा। कुछ लम्हे तक साजिदा पर खौफ तारी रहा, फिर वो पुरसुकून हो गई। साजिदा, तुम मुझको छुपा रही हो। तुम्हारा असल मसला क्या है, मुझे बताओ। नहीं, कोई मसला नहीं है, साजिदा ने कहा। बात जरूर कुछ है, इस तरह बात छुपाने से कोई फायदा नहीं, बताने से ही उसका हल निकलेगा। मुझसे भी तुम बात छुपा रही हो, जमाल ने साजिदा को घूरते हुए कहा। साजिदा उसके घूरने की नजरों की ताब न लाकर नीचे बेड पर देखने लगी। वो अजीब ही उलझन का शिकार हो गई थी। उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये बात शोहर को किस तरह बतलाए। ये बात बताने की सूरत में वो उसके बारे में क्या सोचेगा। किस सोच में पड़ गई तुम? क्या मुझसे भी अपनी बातें छुपाओगी? हम एक दूसरे पर भरोसा करके मामलात को सुलझाएंगे, जमाल ने कहा। जमाल की बात सुनकर साजिदा का कुछ हौसला बढ़ा। बात ऐसी है कि तुम भी अगर मेरी बात सुनोगे तो हंस पड़ोगे। कुछ दिन से मैं एक अजीब खौफ में मुब्तला हूँ। उठते बैठते ऐसे महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है, साथ साथ चल फिर रहा है। काम की तरफ से बिल्कुल तवज्जो हट सी गई है। हाथ पांव लरसते हैं। जहन में अजीबोगरीब शकूको शबहात आते रहते हैं। हर वक्त मौत का खौफ सवार रहता है। डरावने ख्वाब आना मामूल बन गए हैं। अब कभी कभार मुझे इस नजर न आने वाली मखलूक की गर्म सांसें भी गालों पर लगती महसूस होने लगी हैं। कुरान मजीद और नमाज पढ़ते हुए पुरसुकून रहती हूँ, इसीलिए मेरा ज्यादातर वक्त कुरान मजीद पढ़ने में गुजरने लगा है। साजिदा ने एक ही सांस में सारी बात बता दी। साजिदा, एक दूसरे से बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं। तुमने मुझे असल बात बता दी है, अब मैं इसके हल की पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें इस खौफ से निजात दिलाने की कोशिश करूंगा। दूसरे दिन जब जमाल घर में दाखिल हुआ तो वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। क्या ऑफिस में तरक्की हो गई है जो इतने खुश दिखाई दे रहे हो? साजिदा ने उसको खुश देखकर पूछा। अरे बेगम, हमारे ऐसे नसीब कहाँ जो जल्दी जल्दी तरक्की हो जाए। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में सालों गुजर जाते हैं तरक्की के इंतजार में, जमाल ने कहा। फिर क्या कोई प्राइज बॉन्ड खुल गया है? प्राइज बॉन्ड खरीदा ही नहीं, फिर खुलने का सवाल कैसा? फिर क्या वजह है इस खुशी की? साजिदा ने कहा। बेगम, मैंने अपने ऑफिस से उस्मान से बात की थी तुम्हारे मसले के बारे में। उसके जानने वाले एक शाह साहिब हैं जो ये काम करते हैं। भूत प्रीत को भगा देना उनके बाएं हाथ का काम है। मैं उनके आस्थाने गया था। भूत प्रीत उनसे पनाह मांगते हैं और दोबारा पलटकर नहीं आते, जमाल ने तफसील बताई। अच्छा जमाल, जैसे आपकी मर्जी, साजिदा ने नजरें नीचे झुकाते हुए कहा। रात को सोते में जमाल को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो, जिससे उसका दम घुट रहा है।
सीने पर भी वजन सा महसूस होने लगा था। खौफजदा होकर जमाल ने आंखें खोली। उसके सीने और गले पर मुसलसल दबाव पड़ रहा था, लेकिन दबाव डालने वाला नजर नहीं आ रहा था। बेख्तियार उसके मुंह से आयतुल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़कर सीने पर दम किया, वजन आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गया और फिर उसके बाद खत्म हो गया। क्या नींद नहीं आ रही है? साजिदा ने उसके जागने पर पूछा। नींद बड़ी अच्छी आ रही थी। जो मौसूफ आपको तंग करते हैं ना, अब उन्होंने मुझ पर हमला किया है। मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, जिससे मेरी सांस बंद होने लगी थी, जमाल ने बताया। फिर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस आयतुल कुर्सी जैसे ही पढ़ी तो सुकून मिला, जमाल ने कहा। उसे मालूम हो गया है कि आप शाह साहिब के पास गए थे, इसलिए गुस्से में आकर उसने आपके साथ ऐसा किया। हाँ, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जमाल ने हंसते हुए कहा। इतवार वाले दिन दोनों मियाँ बीवी मुकर्रर वक्त पर शाह साहिब के आस्थाने पर पहुंच गए। आस्थाने में चंद खवातीन बैठी थी। शाह साहिब ने उनको फारिग करके उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। जनाब, आपकी बेगम एक नादीदा हस्ती के जेरे असर आ गई हैं। ये जिन्नात कौम से ताल्लुक रखता है। ये भटका हुआ जिद्दी जिन है। बहरहाल घबराने की बात नहीं, आपको अपना दिल मजबूत करना है। घबराने से इलाज मुश्किल है, शाह साहिब ने कहा। ठीक है शाह साहिब, आप इलाज करें, हम उस मखलूक से नहीं डरेंगे, जमाल ने कहा। ठीक है, इसका फैसला अभी हो जाएगा कि तुम कितने बहादुर हो। मैं उस मखलूक को बुला रहा हूँ। मुझे उससे कुछ सवालात करने हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि वो तुम्हें क्यों तंग कर रहा है, शाह साहिब ने कहा। वो कुछ देर तक पढ़ाई करते रहे और फिर देखते ही देखते साजिदा की हालत गैर होने लगी। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे उसमें जलाल आ गया हो। उसकी आंखें दहकते आग का अंगारा महसूस हो रही थी। ओ बुड्ढे, तूने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? साजिदा गराते हुए मर्दाना आवाज में बोली। इन लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? शाह साहिब ने पूछा। हमारी साजिदा से पुरानी दुश्मनी है। मैं इसको सिसका सिसका के मार डालूंगा, जैसे मेरा भाई सिसक सिसक कर मरा है। तुम्हारे भाई के सिसक सिसक कर मरने से साजिदा का आखिर क्या ताल्लुक है? शाह साहिब ने पूछा। साजिदा को मेरे भाई के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जब साजिदा को मालूम नहीं, फिर तुम क्यों इसके दुश्मन बने हुए हो? साजिदा के नाना कमरुद्दीन का आस्थाना कराची के गार्डन में था और वो बड़े पहुंचे हुए थे। मेरे भाई का दिल एक खूबसूरत लड़की महनाज पर आ गया था। उस लड़की के घर वालों को मेरे भाई का उस लड़की पर आशिक होना पसंद नहीं आया और साजिदा के नाना कमरुद्दीन के आस्थाने पर पहुंच गए। कमरुद्दीन ने मेरे भाई को धमकी दी कि इस लड़की को छोड़ दे, लेकिन वो ना माना, जिस पर उन्होंने मेरे भाई पर ऐसा अमल किया कि वो तड़प तड़प कर मर गया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि कमरुद्दीन का कोई भी रिश्तेदार जिसका ताल्लुक उसकी नस्ल से होगा और वो जब भी हमारी हद में आ गया, मैं उसको आसानी की मौत देने की बजाय डरा डरा कर, तड़पा तड़पा कर और सिसका सिसका कर मार डालूंगा। उस दिन के बाद मुझे फिर ऐसा कोई मौका हाथ ना आया। 2 माह पहले साजिदा एक शादी में गई थी। ये इत्तेफाक था कि साजिदा रात के 1 बजे शादी हाल से निकलकर उस मैदान से गुजरी जो हमारी हदूद में है। इसको देखकर मेरे पुराने जख्म एक बार फिर से ताज़ा हो गए और मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं इस औरत को इस तरह तड़पा तड़पा सिसका सिसका कर जान से मार डालूंगा। और अगर इस पर तस खाएंगे और इसके जल्दी मरने की दुआ भी करेंगे लोग, ताकि इसको तकलीफ से निजात मिल जाए। लेकिन मैं इस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा। अगर इसके शोहर ने इस मामले में मुदाखलत की या इसका इलाज कराया तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। इसका भी यही हाल करूंगा जो साजिदा का करना है, जिनसादे ने कहा। देखो, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि इसका पीछा छोड़ दो। तुम्हारा भाई गलती पर था, उसको इस लड़की का पीछा छोड़ देना चाहिए था, इस तरह उसकी जान बची रहती। तुम भी अपने भाई की तरह गलती दोहराकर पछताओगे, शाह साहिब ने उसे समझाया। नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें भी देख लूंगा, जिनने धमकी दी। ठीक है, तुम मुझे देखना और मैं तुम्हें देखता हूँ। ये कहते हुए शाह साहिब ने दम किया हुआ पानी साजिदा के मुंह पर मारा तो जिन गायब हो गया और साजिदा अपनी असली हालत में आ गई और हैरानगी से दोनों को देखने लगी। मुझे क्या हो गया था? साजिदा ने बदहासी के आलम में कहा। तुम्हें कुछ नहीं हुआ बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हमें कार्रवाई करने का सिरा हाथ आ गया है कि अब हमें क्या करना है। शाह साहिब ने मुस्कुराते हुए साजिदा की तरफ देखा। जमाल आज की कार्रवाई देखकर मुतमिन हो गया था। शाह साहिब जरूर ये मसला हल कर देंगे।
शोहर को मुतमिन देखकर साजिदा समझ गई थी कि अब जल्द ही उस नजर न आने वाली मखलूक से जान छूट जाएगी। रात के 12 बजे का वक्त था। जमाल और साजिदा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक साजिदा की नजर कमरे के फर्श पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंकी। साजिदा के चौंकने पर जमाल की भी नजर उस तरफ गई। फर्श पर बड़े बड़े खौफनाक बिच्छू इधर उधर बड़ी आजादी के साथ घूम फिर रहे थे। ये सब क्या है? जमाल ने कहा। पता नहीं, मेरी खुद अभी इन पर नजर पड़ी है, ये न जाने कहां से आ गए हैं, साजिदा ने बताया। जमाल ने फौरन ही मेज पर पड़े गिलास के पानी पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंका और बिच्छू पर छिड़क दिया तो चश्मे जदन में सारे बिच्छू गायब हो गए। मैं अभी शाह साहिब से मोबाइल पर बात करके पूछता हूं कि इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। साजिदा जमाल की बात पर मुस्कुरा दी। शाह साहिब से राब्ता होने पर जमाल ने सारी सूरत हाल उन्हें बता दी। जमाल बेटे, ये जिन अपने इंतकाम की आग में बाउला हुआ जा रहा है। इस तरह की हरकतें करके वो तुम लोगों को डराना चाह रहा है ताकि तुम उसके खौफ में मुब्तला रहो, साजिदा का इलाज भी ना करा सको। तुम्हें मजीद डराने के लिए ये मुख्तलिफ शक्लें बनाकर सामने आएगा ताकि तुम लोग डर जाओ। तुम्हें बड़े सब्र और हौसले से काम लेना पड़ेगा, जब भी तुम्हारी उस बदबख्त जिन से जान छूट सकती है, शाह साहिब ने कहा। ठीक है शाह साहिब, हम बिल्कुल भी उस जिन से नहीं घबराएंगे, चाहे वो कितनी ही खतरनाक चालें चलता रहे, जमाल ने कहा। ये तुमने बड़ा अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं कुछ करता हूँ ताकि तुम लोग बेफिक्र होकर सो जाओ, शाह साहिब ने कहा। शाह साहिब की यकीन दहानी पर दोनों मियाँ बीवी मुतमिन होकर सो गए और उनकी फिर सुबह ही आंख खुली। दूसरे दिन जब वो सोए तो जिन ने उनको बिल्कुल भी इस वक्त परेशान नहीं किया, लेकिन अचानक आधी रात को उनको ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके कान के पास खड़ा होकर जोर जोर से रो रहा है। उनके उठने पर शोर बंद हो गया। जैसे ही दोबारा उनकी आंख लगी, रोने की आवाज आने लगी। रात में कई बार ऐसी महसूस हुआ जिसके सबब वो अच्छी नींद ना ले सके। तीसरे दिन उन्हें कमरे की खिड़की से ऐसे लगा कि कोई खौफनाक शक्ल का शख्स झांक रहा है। बहुत बड़ी आंखें जो कि सुर्ख थी और वो उन्हें गुस्से से देख रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वो चेहरा खिड़की से गायब हो गया। चौथे दिन उन्हें कुछ नजर न आया तो वो सुकून की नींद सो गए। अचानक रात किसी पहर साजिदा चीख मारकर उठ बैठी। क्या हुआ है साजिदा? वो मुझे मार देगा, घबराहट से आवाज हलक में फंस रही थी। हाँ बोलो साजिदा, क्या हुआ? जमाल ने पूछा। मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स खौफनाक शक्ल का तलवार लिए मुझे मारने को दौड़ रहा है और मैं जंगल में भाग रही हूँ। मैं तेज दौड़ रही थी लेकिन वो फिर भी मुझ तक पहुंच गया और मेरा पैर फिसला और मैं फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर? हाँ, फिर क्या हुआ? जमाल ने पूछा। उसने तलवार फिजा में बुलंद करते हुए कहा, तू और तेरा शोहर कुछ भी कर लें, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जैसे ही उसने मेरी गर्दन पर तलवार रखी, जुदा की, मेरी घबराहट से आंख खुल गई, साजिदा ने बताया। बड़ा ही भयानक ख्वाब तुमने देखा है। जिन हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है लेकिन उसका कोई भी दाव कामयाब नहीं हो पा रहा। हम सुबह शाह साहिब के पास चलेंगे, जमाल ने कहा। सुबह नाश्ते से फारिग होकर दोनों मियाँ बीवी शाह साहिब के आस्थाने पर पहुंच गए तो वो उनको देखकर मुस्कुराए। हाँ बेटी, ख्वाब में क्या देखा? शाह साहिब, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब में कुछ देखा है? वो हैरान रह गई। वो अपना आखिरी खरबा जरूर इस्तेमाल करेगा, रात भी यही हुआ है। मजबूरन मैंने उस जिन को जलाकर भस्म कर दिया है। अब वो तुम्हें हरगिज तंग नहीं कर सकेगा, शाह साहिब ने मुस्कुराते हुए बताया। एक हफ्ता बिल्कुल हैरियत से गुजर गया। अब साजिदा की पहले वाली कैफियत नहीं रही थी। मुतमिन और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगी थी। डर और खौफ की कैफियत खत्म हो चुकी थी। एक शाम जमाल के घर लौटने पर उसने देखा कि साजिदा के चेहरे पर खौफ था। पूछने पर वो टाल गई। दूसरे दिन भी उसकी यही कैफियत थी। इस वक्त वो खाद बाथरूम से निकली। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। पसीना चेहरे पर इस तरह आ रहा था कि जैसे पानी से नहाई हो। क्या बात है साजिदा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं, साजिदा ने कहा। मुझसे कुछ मत छुपाओ, साफ साफ बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, जमाल ने सख्त लहजे में कहा। वो 3 दिन से मैं जब भी टॉयलेट जाती हूँ तो किसी अनजाने खौफ से लरसने लगती हूँ। ऐसे लगता है कोई अनजानी कुव्वत मुझ पर दबाव डाल रही है। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। बात वाकई सीरियस है। जिन मर चुका है, फिर ये नया डर कैसे हुआ? मैं शाह साहिब से बात करता हूँ। जमाल ने जेब से मोबाइल निकाला। जमाल, मुझे कुछ होगा तो नहीं? उस जिन ने धमकी दी थी हम दोनों को मारने की। कहीं ऐसा तो नहीं वो जिन नहीं मरा और अब फिर से अपनी कार्रवाई शुरू कर रहा हो?
میری بات شاہ صاحب سے ہو جائے تو اصل کیفیت معلوم ہوگی، جمال نے کہا۔ شاہ صاحب سے رابطہ ہونے پر جمال نے نئی صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ تم نے بڑا اچھا کیا مجھے بتا دیا، مجھے اس خبر کا بے چینی سے انتظار تھا۔ دراصل جن مرتے مرتے بھی ساجدہ پر ایک وار کر گیا ہے جو کہ ظاہر نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب ایسا ہونے سے ظاہر ہو گیا ہے کہ اس نے یہ وار کیا تھا تاکہ ساجدہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہے اور لرز لرز کر انتقال کر جائے۔ میرے پاس اس وار کا زبردست توڑ ہے، 2 دن میں ساجدہ بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا مجھے ساجدہ کو لے کر کل آنا پڑے گا؟ جمال نے پوچھا۔ نہیں، آنے کی ضرورت نہیں، ساجدہ بیٹی کی بیماری ختم ہو جائے پھر میرا منہ میٹھا کرانے کو چمچم کا ڈبہ لے آنا، شاہ صاحب نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ 2 دن گزرنے پر شاہ صاحب کی بات درست ثابت ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ساجدہ صحت یاب ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی جب مٹھائی کا ڈبہ لے کر شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچے تو انہیں دیکھ کر وہ مسکرائے۔ ایک چمچم خود کھائی اور باقی چمچم ایک ایک کر کے فضا میں پھینکنے لگے۔ چمچم فضا میں جا کر غائب ہو رہی تھی۔ وہ دونوں حیرت سے بت بنے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ ان کی حیرانی کو شاہ صاحب سمجھ گئے اور مٹھائی کا ڈبہ ایک طرف رکھتے ہوئے بولے، بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلی مٹھائی سے اپنا منہ میٹھا کروں؟ جن قوتوں نے اس ہند کو مارنے میں مردانہ وار مقابلہ کیا ان کا بھی منہ میٹھا کرنا ضروری تھا۔ شاہ صاحب ایسا کیا بھی ہوتا ہے؟ جمال نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بھئی، میری عادت ہے، میں اکیلے کچھ نہیں کھاتا، سب کو شریک رکھتا ہوں۔ اور ساجدہ بیٹی، آئندہ تم شادی ہال کے پاس والے خالی میدان سے دور رہنا، وہی ان جنات کی حد ہے، شاہ صاحب نے بتایا۔ جمال اور ساجدہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اس میں ان کی بھلائی تھی کہ نشاندہی ہو جانے پر احتیاط برتیں، ورنہ پھر اس طرح کی مصیبت نازل ہو سکتی تھی۔